हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। तो आज मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करे तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग कल के दिन अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे क्यूमेंस इंडिया है। क्यूमेंस इंडिया दिख रहा होगा, ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करा है। एक सपोर्ट लेवल है क्यूमेंस इंडिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर रजिस्टर्स के आसपास से ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक यहीं पे आके ऑलमोस्ट एक रेंज में फंस गया है और फाइनली आज एक बुलिश क्लोजिंग मिला है। और अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे लाइक 30 मिनट, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी दिखेगा, राइट। अगर मैं पैटर्न आप क्लियरली ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो दिस इज आवर डायनेमिक सपोर्ट हियर, राइट, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। सो दिस इज मोर लाइक अ एसेंडिंग ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। तो कल के दिन अगर क्यूमेंस इंडिया आज के अपने हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग क्यूमेंस इंडिया में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज नौकरी। नौकरी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, राइट। यहाँ पे एक हाई बना, फिर थोड़ा सा स्टॉक रिट्रेस किया, फिर ऑलमोस्ट एक हाई बना। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है तो नौकरी में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। Another stock is PI Industries. In PI Industries, what is happening? After the breakdown of the support, the stock is accumulating near the support zone only, right? And there is a good close, and there is a good bullish closing today. So if the high of this particular green candle is being breached tomorrow, we can plan to take bullish trades on PI Industry. Another stock is Britannia. In Britannia, we can see this particular stock is trading near the support zone. This is the support zone, and the stock is trying to take a bounce from this particular zone. And here we are seeing a very good accumulation. If we will switch to the smaller time frame, like 1 hour time frame, we can see the stock is accumulating in a range here. So if the stock opens above this particular high, which is above 4550, if Britannia is able to sustain above 4550, we can plan to take a bullish trade in Britannia. Another stock is Tata Motors. So let's see Tata Motors. In Tata Motors, what we are seeing a similar kind of structure. The Tata motor is almost making a higher high kind of formation, and this is like this looks like more like a pole and flag kind of pattern. Let me show you how. So this can be considered as the pole, right? This is the pole, and from this particular high, the stock is taking a retracement. So this can be considered as a flag here. And what is happening? So if there will be a breakout of this particular pattern, we can see a good upside push. But why I have selected this particular stock for tomorrow? Because after a good accumulation, we are seeing finally a good bullish closing here, right? So if the high of this particular green candle is being breached tomorrow, we can plan to take a bullish trade on Tata Motors as well. Another stock is Bharat Forge. In Bharat Forge, you guys can clearly see that there is a formation of a trend line here. This is a trend line, and there is already the breakout of the trend line, right? So, and there is quite a good closing, bullish closing in Bharat Forge. So if the high of this particular green candle is being breached tomorrow, we can plan to take bullish trades on Bharat Forge. जो another stock है वो टेक महिंद्रा है। तो टेकम में दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें भी काफ़ी अच्छा एक क्लोजिंग आज हम लोगों को देखने को मिला है। तो कल के दिन अगर अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो टेकम में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो रामकॉम सीमेंट है। आपको दिख रहा होगा सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट इसलिए करा है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऑलमोस्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाई के आसपास ट्रेड करने के बाद एक ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ये रेंज बना रहा है। तो कल के दिन अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है, विच इज़ मीन्स अगर ये 957 के ऊपर ट्रेड करता है रामकॉम सीमेंट्स, तो हम लोग इसमें बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है वो पिडिलाइट है। पिडिलाइट में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। दिस इज अ सपोर्ट जोन हियर इन पिडिलाइट, दिस इज अ सपोर्ट जोन, दिस इज अ क्लियर सपोर्ट जोन। एंड सपोर्ट जोन के आसपास से ही क्या हो रहा है, प्राइस में एक यहाँ पे हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। ये पहले एक हाई बना, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ऑलमोस्ट एक ही हाई बन रहा है। तो और आज का जो एक पर्टिकुलर कैंडल है दिस ऑल्सो लुक्स प्रिटी गुड। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है तो पिडिलाइट में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद हम लोगों को एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो लेट्स सी भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल भी काफ़ी एक अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट 2.5% का मूव आया, लेकिन फिर भी मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट करा कल के लिए। द रीज़न बीइंग कि थोड़ा पे यहाँ पे लॉजिक का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझो। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मैसिव मूव तो आया है, राइट, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं आया। एक्चुअली जो मार्केट में जो ट्रेडर्स एंटर करते हैं ना, ज़्यादातर जो सिस्टमैटिक ट्रेडर्स लोगों का लॉजिक होता
एक अप ट्रेंड देखते हैं, फिर एक काउंटर मूव देखते हैं, उसके बाद एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखते हैं। तो हम लोगों को भारतीय एयरटेल में यहाँ पे एंटर करने का कहीं मौका नहीं मिला। तो राइट, तो कल के दिन अगर भारतीय एयरटेल अपने हाई को क्रॉस करता है, इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है, और उसके बाद अगर हम लोगों को अपने एंट्री स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो भारतीय एयरटेल में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज चोला फाइनेंस, इट्स टू 1 day टाइम फ्रेम। सो इन चोला फाइनेंस व्हाट इज हैपनिंग, द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन। हायर हाई फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट हुआ। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है चोला फाइनेंस में, तो चोला फाइनेंस में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक है वो बजाज होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग में आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ सपोर्ट जोन, राइट, दिस इज अ सपोर्ट जोन एंड देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन, राइट। और यहाँ पे एक रीटेस्ट काइंड ऑफ हो रहा है। और अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ लाइक 30 मिनट्स, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन भी है, राइट। यहाँ से अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ चुका है। तो कल के दिन अगर बजाज होल्डिंग अपने आज के डे के लो के नीचे निकलता है, तो हम लोग बजाज होल्डिंग में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप दिस एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पिंग यू अ लॉट। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप डाउन कर सकते हो। थैंक यू, सी यू इन द अनदर वीडियो।